कश्मीर में आज की डेट में भी गड़बड़ है और आने वाला समय कश्मीरी पंडितों के लिए क्या लेके आएगा हमें नहीं पता। वो 90 से भी वर्स्ट होगा। निशानी रखी है। कौन जो भिखारी होगा वो भी शाम को घर जाता है। तो हम तो घर गृहस्थी वाले थे, सब कुछ था हमारे पास, क्या नहीं था। जो कश्मीरी मुस्लिम मिलिटेंसी में, टेररिज्म में शामिल हुए, उनके अलावा जो कश्मीर के लोग थे वो उनके साथ जुड़े नहीं थे। 30 years. That's how long Kashmiri Pandits who were uprooted from the valley during the militancy of the 1990s have been waiting for their return. A promised land that has been endlessly teased by the Bharatiya Janata Party, been the subject of many a filmmaker's camera, and even used as one of the reasons to support the controversial revocation of Article 370. Yet, decades later, a vast majority of Kashmiri Pandits languish in refugee camps in Jammu, where they can only dream of Kashmir. वानई क्या दादी चाने क्या करान छूस टाठी जाननो वनई क्या दाद। कश्मीर में हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हैं, तहसील डूरू है। तो बचपन में हम ठीक ठाक वहाँ पर माहौल होता था जब बचपन में थे। But things started changing in the 90s. A change so drastic that Ashok Bhatt, then a 27-year-old school teacher, would sleep with his boots on, just in case they had to run. Terrified by the killings, they eventually did run to Jammu's Udhampur. For the first 14 years, his family lived in tents. 3 decades later, he's still living as a refugee in Jammu. 86 से हालात ख़राब हो गए। उस वक्त ऐसे हालात बन गए कि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में खासकर मंदिरों पर अटैक हो गया, बहुत सारे मकान जलाए गए। पूछते पूछते ये 89 दिसंबर से ही माइग्रेशन शुरू हो गई। लोगों को मारना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो वहाँ पर कश्मीरी पंडित थे उनको मारा, किसी को फांसी पर लटकाया। A year after the Anantnag riots, Kashmir went to fresh elections. In the fray were 3 parties: the incumbent National Conference, the Muslim United Front, and the Congress. That election, Jammu and Kashmir witnessed the highest ever turnout in assembly polls. It was also an election that would change Kashmir forever. In the elections of 1987, there was an alliance between the Congress and the National Conference, and that had been kind of imposed on the National Conference by a powerful, strong central government. And the Muslim United Front, which was a coalition of many small parties, various ideological dispensations, was fighting against this alliance. And there was widespread and rampant rigging. Polling agents weren't allowed inside booths. Ballot boxes were stuffed, candidates were coerced, opposition candidates and workers. It was quite brazen. Now, the funny thing is, we don't actually know if the Muslim United Front would have won that election in a fair election. It would have got more seats. The Congress and the National Conference, by rigging that election, destroyed a youth generation's faith in the robustness of Indian democracy. Following the election of 1987 began a spate of targeted killings of Kashmiri Pandits in the valley. Tikalal Taplu, Neelkant Ganju,
Premnath Bhatt. The violence spread like wildfire across Kashmir. In March 1991, it reached Kusumlata Bakshi's home in Srinagar's Rainawari. That was the last day she saw her 25-year-old cousin brother alive. 16 साल के पूरी 16 साल की थी तब जब उसको मारा था। वो जिसको मारा था वो 25 साल का था। वो 25 साल का पढ़ा लिखा था, नौकरी ढूंढ रहा था। बैठा था उस दिन धूप में नहाकर, तो पीछे आए 3-4 धक्का मारा। क्या हो, उसने बोला क्या हुआ, बस गोली लगाई। नहीं, सारे पड़ोसी नहीं हैं, सारे नहीं, उनको भी बाहर के है। हम नहीं बोल सकते, सारे नहीं है, पड़ोसी नहीं है। और कहीं के आते थे, मारते थे, टेररिस्ट थे, वो पड़ोसी थोड़ी थे। अब बौद्ध भी मुस्लिम भी अपने मर गए उधर, एक ही नहीं, सरदार भी मार दिए। मगर कश्मीरियों को ज़्यादा हो गया, पंडितों को। अच्छा, जो कश्मीरी मुस्लिम मिलिटेंसी में, टेररिज्म में शामिल हुए, उनके अलावा जो कश्मीर के लोग थे वो उनके साथ जुड़े नहीं थे। मैंने पहले भी कहा, वो नहीं चाहते थे। वो उस टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन बंदूक के नोक पर जब किसी घर में 4 मिलिटेंट शाम को घुस जाते थे, एक तो उनसे खाना मांगते थे, खाना भी खाते थे, उन्हीं के घरों में सोते थे, जो उनको मर्जी होती थी वो उस घर में मांगते थे, करते थे। लेकिन वो मुसलमान भी इतने तंग आ चुके थे और आज भी आ चुके हैं कि हमने क्या गुनाह किया है, हमारे साथ ऐसा किया है। लेकिन बात यहाँ बनती है और सवाल पैदा होते हैं। जो सरकार उस वक्त थी 1990 में, जिस वक्त हमें भागना पड़ा, किसकी सरकार थी केंद्र में? और उस वक्त वीपी सिंह साहब की सरकार थी, बीजेपी के सपोर्ट पर। वक्त था ऐसा, उस समय सिचुएशन हो गई थी। मगर मैं इसमें बार बार ये चीज़ कहता हूँ, दैट वाज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चूँकि अगर मेरे गांव में, मेरे स्टेट में, मेरी जगह पर अगर कोई बाहर से कोई आया है, कोई हथियार लेके आया, कुछ लेके आया, तो मुझे लगता है वो फेलियर है गवर्नमेंट का। चूँकि IB हमारी, राह हमारा, सिक्योरिटी हमारा, सब कुछ हमारा। उसके बाद यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है दिस इज द पॉइंट ऑफ द इंक्वायरी कि इस पर एक कमीशन बैठना चाहिए। ऐसा हुआ तो हुआ क्यों था। Jammu, home to around 40,000 Kashmiri migrants, of which the Kashmiri Pandits form a huge chunk. These are people who had fled Kashmir in the 1990s and were then forced to live out of tents across Jammu for years. In 2011, the then UPA government, led by Congress's Dr. Manmohan Singh, shifted them to concrete apartments in refugee colonies in Jakti, Purkhu and Muthi in Jammu, albeit temporarily.
It is from these cramped two-room apartments that Kashmiri Pandits like Bansilal Sharma dream of a home that they no longer have. सब कुछ था, हर एक चीज़ ज़मीन थी। A retired government employee, he lives in Jammu with his wife and their grandson. यही सोचते सोचते हमें 32 साल हो गए, ये सच बात है। हम यही सोचते थे कि शायद 2 महीने के बाद जाना होगा, चाहे 4 महीने के बाद, चाहे 6 महीने के बाद जाना होगा घर। हम इसलिए आए थे, हमें ये नहीं पता था कि हमें बिल्कुल ही छोड़ना है सब कुछ, ये नहीं पता था। अगर ये पता होता तो हम उधर मर जाते तो वो अच्छा था। यहाँ हमें बहुत सख्ती हुई, बहुत ज़्यादा सख्ती हुई। हमारे कितने मुलाजिम थे, अंदाज़ा लगा कितने मुलाजिम, कम से कम हर घर में एक तो पंडित तो था ही। मुलाजिम मतलब सरकारी कर्मचारी, कम से कम एक तो था ही। हमारे लगभग 50,000 मुलाजिम थे, 60,000 मुलाजिम थे, उसमें से 6,000 दिए। रोज़ रोज़ बोलते हैं हमने इतने मुलाजिम दिए, हर स्टेज पर हमें बदनाम करते हैं, क्या देते हैं। सर बस यही कर दिया कि जिंदा रखो इनको, कश्मीरी माइग्रेंट को, कश्मीरी पंडित को जिंदा रखो। जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा रिलीफ है। मुझे एक चीज़ बताए, सेंटर में भी पार्लियामेंट में भी हर कोई बोलता है इनको 13,000 रुपये रिलीफ मिल रहा है। 13,000 पर फैमिली नहीं मिलता है। कैसे एक बंदे के हिसाब से होता है। अगर किसी के फैमिली में सिर्फ एक बुजुर्ग है, उसको कितना मिलेगा 13,500 में से? 3,025 ढाई, मतलब वही है 6,500 2 बंदों का मिलता है। ऐसे 3 मतलब 13 उसके मिलते हैं जो जिसके 4 है, 10 है, 8 है मेंबर, उसके 13 मिलते हैं। झूठ हर तरफ से झूठ ही झूठ बोला जाता है। पॉलिटिकली इसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। एक मेरा हस्बैंड रिलीफ पे, उस पे कितना गुजारा होगा। नौकरी नहीं करते, बीमारी भी है, इसका भी पहले कैंसर था गले का, उसका इलाज मैं खुद भी शुगर पेशेंट, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये दवा में 3-5 हज़ार उसी पे हो जाता, दवा पे ही फिर क्या बचता, फिर साग और कलम ही खाना। These apartments are actually part of the Purkho refugee camp, which was built by the UPA government during its tenure, and this is where thousands of Kashmiri Pandit families live in 2-room apartments. But while they still have a concrete roof over their head, there are several other Kashmiri Pandit families who are forced to stay in these abandoned structures. These are temporarily makeshift apartments that you can see. They were actually built during the 1990s when Kashmiri Pandits were fleeing the valley due to militancy, and they had to come and stay over here. These quarters were later abandoned, but they are now occupied by other Kashmiri Pandit families who say that they have nowhere else to go, they have no rent to pay, and these Kashmiri Pandits allege that the government has done very little for their accommodation in Jammu itself, leave alone their rehabilitation in homeland Kashmir. पहले किराए पर रहते थे, ये कैंप शैम्प कुछ नहीं था। 1-2 कैंप से वो फुल हो गए थे सारे, तो किराए पर किराया भी सब कुछ महंगा हो गया, तो रहने लगे, गुजारा करने लगे। क्यों नहीं मिला चेक? बस घूस खोरी बीच में आ जाती, अफसरशाही। मुझे जिसने दिया घूस तो वो चला गया। कितना घूस देना पड़ेगा आपको? 25,000 30,000। आपके पास है? नहीं है, तभी तो पीछे रह गया। अगर होता तो दे देता भाई। ये देखिए हमारे लेन का, ये बरसातों में पूरा भर जाता है।
और मॉस्किटो पलता है, मच्छर पलता है, मक्खी पलती है और पता नहीं क्या क्या ब्रीड यहाँ होती। तो देख सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये टूटे फूटे घर बोलते, कुछ लोगों को ऊपर अच्छे अपार्टमेंट्स में बिठाया है, लेकिन हमारे लिए क्या ये टूटे फूटे घर ही है और कुछ नहीं है। तो शादी क्यों नहीं की आपने? जब यही बेघर घर से बेघर रहे, मैं दूसरी की लड़की को देखा, कभी एक किराए के मकान में रहे, बोलता है बस भाई आपको इतना टाइम हो गया खाली करो कमरा। घर से बेघर हो गए। मैं कहा उसको भी जुल्म जो मेरे साथ रहेगी, उसको अगर बच्चा भी हो गया फिर उसको भी घर से बेघर, कभी इधर कभी उधर। सो मैंने कहा ना। चौदह साल का था मैं, मुझे जब कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने यही चक्की उठाई, क्योंकि इसमें हम सत्तू पीसते थे घर में। A couple of blocks away from Ashok Kumar lives Vinod Raina, who too has not been able to secure a concrete shelter over his head. Living in an abandoned tin shed, Raina says that he neither has a permanent home nor is he able to provide decent education for his two sons. He hasn't gone back to Kashmir since he left in 1990. हमें 34 साल हो गए, अभी 34 साल से हम वनवास भुगत रहे हैं, और क्या भुगतना। उस चीज़ से तो हमारे बच्चों को भी अब सफ़र करना पड़ रहा है। वो चीज़ नहीं दिखाई ना इसमें इन्होंने, कश्मीरी फाइल इन्होंने दिखाई हकीकत, लेकिन जो हमारे ऊपर बीत रही है, इस टाइम भी बीत रही है, वो कोई नहीं दर्शाता है। तो आपका कहना है कि उन्होंने करा नहीं? सर मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बात नहीं बोली बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी काम कर रही है, जो उसने काम करना है वो कर रही है, लेकिन हमारे लिए, पंडितों के लिए क्या है? नहीं, जॉब्स तो दिए उन्होंने, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी ने जॉब्स दिया है, बीजेपी जॉब दे रही है और फिर 3000 जॉब निकाल रही है, लेकिन कहाँ के लिए? सिर्फ कश्मीर के लिए। एक मुसलमान है, वो दिल्ली में भी नौकरी कर रहा है, जम्मू में भी नौकरी कर रहा है, पंजाब में भी, कहीं भी। तो सिर्फ एक पंडित को ही क्यों कश्मीर, जबकि पंडित पहले 30 साल 34 साल से टारगेट है वहां पर। Hundreds of Kashmiri Pandit migrants employed in government offices under the PM's employment package are out on the streets of Kashmir. Their demand? Justice for Rahul Bhatt, a 35-year-old Kashmiri Pandit, Revenue Department official, who was shot dead by militants at the Tehsil office in Kashmir's Budgam on 12th May 2022. BJP government! Bhatt's death and the protests that followed have exposed the harsh reality of around 5,900 Kashmiri Pandit migrants who have been given jobs under the PM's package, first by the UPA and then by the BJP. Around 250 of these employees stay at a transit camp built for them in Kulgam's Vesu, where 4 families are forced to share a 2-room prefabricated metal quarter for nearly 12 years. Ajay Raina is one of them. सबसे पहली बड़ी बात तो है कि जो हमारे दिल में एक डर बैठा हुआ है कि यहाँ हम रहें या नहीं रहें, पहले सरकार को वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे 8x8 के मकान में हमें रखा गया है, मकान ही कैसा, उसको शेड कह सकते हो आप। हम कुछ सवेरे निकलना है, शाम को यहाँ कोई पूछ पाछ करने के लिए कोई नहीं आता है। अभी हम, आपको पता है, पिछले 10-12 दिन से एजिटेशन कर रहे हैं, तो धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे हैं। किसी का टाइम बाउंड प्रमोशन रुका हुआ था, वो निकल रहा है, अब ट्रांसफर नज़दीक करेंगे, ये वो करेंगे। तो इन 10-12 सालों में सरकार क्या सोई हुई थी? उनको नहीं पता था कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है। ये क्वार्टर प्री फैब्रिकेटेड है, यानी इसकी
व्याख्या में अगर करूं, अगर गोली ए ब्लॉक में निकल जाएगी तो 11 वाले को लग जाएगी, यानी ये प्रीफैब्रिकेटेड है। यानी आप यकीन मानोगे इसकी एज 7 साल 8 साल टोटल थी। आज 12 साल से हम इन प्रीफैब्रिकेटेड क्वार्टरों में रह रहे हैं। आप यकीन मानोगे कि टोटल 250, अगर हम पूरे वैली की बात करेंगे 500 550 टोटल प्रीफैब्रिकेटेड। और बंदे कितने बुलाए इन लोगों ने, एम्प्लॉय कितने हैं, 6000 एम्प्लॉय। एक क्वार्टर में अगर मैं 10-10 20-20 भी लगा लूंगा फिर भी पूरे नहीं होते हैं। सर ये पैकेज थोड़ी है, ये तो डैमेज है। ये हमें बाइफरकेशन है हमारे घर वालों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। इधर 6 गैस है, देखो 4 आप देख रहे हैं, एक तो इधर बाहर है, बाहर रखा है एक ने, जगह ही नहीं, इधर कहाँ रखेंगे। जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं चलता है क्या करना है। जो रिसेटलमेंट है ना, ये इन्होंने हमारा डिवीजन किया है। हमें बॉन्डेड लेबरर्स की तरह यहाँ पे रखा गया है। इस पैकेज को हम नाम देते हैं केज पैकेज। एक तो हम परिवारों से दूर है, हमारे परिवार जम्मू में है। अब देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे खुद का रहने के लिए जगह नहीं है, तो हम अपनी फैमिली बच्चों को यहाँ पे कैसे सेटल करेंगे। पीएम पैकेज एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, सिंपली एम्प्लॉयमेंट पैकेज है। इसको रिटर्न रिहेबिलिटेशन के साथ जोड़ना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि रिटर्न रिहेबिलिटेशन पूरे समुदाय की है जो 5 लाख कश्मीरी पंडित है। जब पूरे 5 लाख कश्मीरी पंडित है तब आप उसको कंप्लीट रिटर्न रिहेबिलिटेशन मानोगे। जीने दो। We want justice. Barely a month after Rahul Bhatt's killing, 3 back-to-back targeted attacks rocked the valley. First, Rajni Bala, a Hindu school teacher from Samba near Jammu, is gunned down at a school in Kulgam on 31st May. Terrified, Kashmiri Pandits protest. 2 days later, on 2nd June, Vijay Kumar, a banker from Rajasthan, is shot dead in Kulgam. When news pours in, Kashmiri Pandits protest again. The same day, 2 migrant labourers are shot at in Kulgam, and one of them, identified as Dilkhush Kumar, dies. Having lost all hope in the administration, around 100 Kashmiri Pandits leave Kashmir for Jammu, just like they did in the 1990s. सबको पता है हम क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। इस टाइम सबसे बड़ी चीज जो ये है, हमें अपनी जान बचानी है। Those who stay back threaten to leave if not given jobs out of Kashmir. They still have a home outside Kashmir. But what about the 800-odd Kashmiri Pandit families who never left the valley even during peak militancy of the 1990s? Where will they go? And why did they stay back? This question still haunts Sanjay Tikku. ये पिछले 32 साल से जितने भी हम 808 परिवार हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब सभी लोग चले गए तो आप क्यों नहीं चले गए। तो भी फ्रैंक है ना, इसके लिए कोई जवाब नहीं है हमारे पास। क्योंकि हमें तो हमेशा कहा जाता था और अभी भी कहा ये तो गद्दार है, ये उस समय क्यों नहीं निकले, इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ठीक है, हमने वो झेला जो उन्होंने नहीं झेला। हमने 2 गन फेस किए, एक तो टेररिस्ट का गन था और दूसरा सिक्योरिटी फोर्स वाला का गन था। आज की डेट में तो सभी कह रहे हैं अब आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो आपकी बीजेपी सरकार है, मोदी तो आपके है। मोदी पीएमओ ऑफिस को हमने 40 बार चिट्ठी लिखी कि हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, नहीं दी इन 8 साल में। ये हालत है। अभी
शुभेंद्रू जी की डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले, तो हम लोग सारे मतलब वहाँ पर थे, मतलब जितने भी मतलब जा सके वहाँ पर। तो उनकी जब बॉडी मतलब ऐसे ना धो रहे थे जब, तो वो पीछे बकेट से मैं उनको पानी पास करवा रहा था, सडन ना मेरे को वो नज़र पड़ गई उनकी बॉडी पे। तो मैंने ना वो होल्स देखे जहाँ पे उनको बुलेट फायर्स किए थे, सर पे, वो हार्ट पे, वो पीछे। तो उस टाइम मैं लिटरली मतलब यू नो आई गॉट स्केयर्ड। मुझे लगा कि बिल्कुल ये सेफ जगह नहीं है। So the solution, where does the solution lie then? I mean, the Kashmir solution. Well, there isn't a solution, and because it's not a political solution or a military solution. It's not. There isn't one answer to that, because there isn't one problem. All these problems need to be fixed. You need to fix Pakistan. You need to fix your youth cohort. You need to fix communal relations, and none of these are problems for which there's a switch on, switch off button. हमें अब क्या चाहिए? हमें हिंदुस्तान के किसी कोने में जगह दीजिए इन 808 परिवारों को, जहाँ पे हम, मैं नहीं कहूँगा शांति से जिए, कम से कम शांति से मरे।